So, good morning to everyone. Today, we will start the topic of the channelization, and we will see the channelization in this channelization topic. We will see the three types of channelization, that is frequency division multiple access, or in short form, we can say it is the FDMA. Then we will see the time division multiple access. In short form, it is known as TDMA. And the third type is the code division multiple access, and the name is CDMA. So first, before starting that, we will know that what we know about the channelization. What is called the channelization? So channelization is basically, it is the multiple access method. It is the multiple access method in which the available bandwidth, it is the multiple access method in which the available bandwidth of the link is shared in time, frequency, or through a code. That means there is an available bandwidth of a link, and based on time, based on frequency, and based on through some code, it can be divided. So if it is divided based on time, that the available bandwidth of the link is divided based on time, then it is called known as TDMA, time division multiplexing. And if the available bandwidth of the link, if the available bandwidth of the link are divided based on what? Based on frequency, then it is known as FDMA. And if the available bandwidth is based on through some code of the link is shared based on some code, then we can say it is the CDMA. So before starting that, we will know what is frequency division multiplexing, the first type, that is FDMA. Now, the FDMA is the available bandwidth, the bandwidth which is available for the link is divided into frequency band. And each station is allocated a band. Each station is allocated a band to send its data, and it belongs to the station all time. That means, in simple words, the available bandwidth of the channel. So there is one channel. The available bandwidth of the link means there is a link present. So through this link, the communication will be occurred. And what this this what we know as a link, this link has a band available bandwidth. This link has available bandwidth, and this bandwidth is what? This bandwidth is divided into frequency band. There is a what? There is a one link present, and for this link, a bandwidth is here. But in frequency division multiplexing is what? This available bandwidth will be divided. This available bandwidth, which is available, will be divided into frequency band. Now, there are stations. These stations is what? Each station is allocated a band. Like each station has a band, and each station is allocated to band to send its data, and it belongs to the station all the time. तो मतलब अगर हम लोग इसका ये देखें, डायग्राम देखें, तो मानो ये फ्रीक्वेंसी हम लोगों का है, एंड दिस इज आवर टाइम. तो इसमें क्या है कि हम लोगों का एक लिंक प्रेजेंट है. अब एक लिंक के लिए क्या है कि एक ही अवेलेबल बैंडविड्थ है, बट हम लोगों को क्या है, मल्टीपल स्टेशंस प्रेजेंट है. अब ये मल्टीपल स्टेशंस क्या है, आपस में कम्युनिकेट करते हैं. ये मल्टीपल स्टेशंस जो है आपस में क्या है, कम्युनिकेशन करते हैं. अब ईच स्टेशन के लिए क्या है, ईच स्टेशन के लिए हम लोगों का एक एक फ्रीक्वेंसी बैंड है. अब फ्रीक्वेंसी बैंड कहाँ से मुझे मिलेगा, ये जो अवेलेबल बैंडविड्थ है, जो लिंक का अवेलेबल बैंडविड्थ है, उसको हम लोग डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी बैंड में. तो अब क्या होगा, जैसे इधर हम लोग क्या है, अवेलेबल बैंडविड्थ जो था, हम लोग का लिंक का जो अवेलेबल बैंडविड्थ था, उसको हम 4 डिवाइड किए, 4 टाइप्स में डिवाइड किए. तो मतलब क्या है, मेरा एक हुआ फ्रीक्वेंसी बैंड 1, दूसरा हुआ फ्रीक्वेंसी बैंड 2, तीसरा हुआ फ्रीक्वेंसी बैंड 3, एंड चौथा हुआ मेरा फ्रीक्वेंसी बैंड 4. तो मेरा जो अवेलेबल बैंडविड्थ था, उसको हम चारों डिवाइड किए, चारों पोजीशन में डिवाइड किए. तो चारों डिवाइड करने से क्या हुआ,
मेरा 4 फ्रीक्वेंसी बैंड तैयार हुआ। अब मेरा क्या है कि अवेलेबल जो स्टेशन है, मेरा अवेलेबल स्टेशन है, चारों स्टेशन है, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3 एंड स्टेशन 4। अब स्टेशन 1 क्या है, स्टेशन 1 फ्रीक्वेंसी बैंड 1 को यूज करेंगे। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि स्टेशन 1 फ्रीक्वेंसी बैंड 1 को यूज करेगा, स्टेशन 2 फ्रीक्वेंसी बैंड 2 को यूज करेगा, स्टेशन 3 फ्रीक्वेंसी बैंड 3 को यूज करेगा, और स्टेशन 4 जो है वो फ्रीक्वेंसी बैंड 4 को यूज करेगा। तो ये किया कि ईच स्टेशन इज एलोकेटेड टू बैंड। तो ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड है ये ऑल टाइम के लिए क्या होगा, ये ऑल टाइम के लिए उसके पास रहेगा। मतलब स्टेशन 1 ऑलवेज यूजेस द फ्रीक्वेंसी बैंड 1, इट विल नॉट use frequency band 2, frequency band 3 or frequency band 4. Same as that for case of station 2. Station 2 all the time for sending its data, all the time it will use the frequency band 2 but doesn't use frequency band 1, frequency band 3 or frequency band 4. So that means what, each frequency band, there is a particular frequency band, it will be allocated to what, it will be allocated to a station, and all the time this frequency band will be present to the station for sending the data. That means कि हम लोग का अगर स्टेशन 1 जो है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बैंड 1 एलोकेट कर दिए, तो ऑल द टाइम क्या है, जब सेंडिंग डेटा को सेंड करना है उसको, तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड 1 को ही यूज करके वो सेंड करेगा। नॉट दैट कि फ्रीक्वेंसी बैंड 2, फ्रीक्वेंसी बैंड 3 और फ्रीक्वेंसी बैंड 4 इसको यूज करेंगे, ये नहीं है। उसको जो एलोकेट कर दिया गया है फ्रीक्वेंसी बैंड, वही क्या है ऑल द टाइम फॉर सेंडिंग डेटा वो यूज करेगा। सेम एज दैट स्टेशन 2 का भी फ्रीक्वेंसी बैंड 2 हम एलोकेट कर दिए। अब स्टेशन 2 भी क्या है, ऑल द टाइम जो है वो फ्रीक्वेंसी बैंड 2 को यूज करेगा डेटा को सेंड करने के लिए, ना ही तो फ्रीक्वेंसी बैंड 1, फ्रीक्वेंसी बैंड 3 और फ्रीक्वेंसी बैंड 4 को यूज करेगा। सेम एज दैट फॉर स्टेशन 3, frequency band 3 will be allocated and it will be what, it will be all the time it will use that. And station 4 also frequency band 4 is allocated to him, that means all the time station 4 will what, station 4 will use the frequency band 4 to send the data. यही हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ चैनल और डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, फ्रीक्वेंसी बैंड्स नंबर और एलोकेशन क्वांटिटी कैन बी चेंज्ड। कि हम लोग का जो नंबर ऑफ चैनल्स है और उसका जो रिक्वायरमेंट्स है, हम लोग का फ्रीक्वेंसी बैंड नंबर और एलोकेशन क्वांटिटी कैन बी चेंज्ड। सो दिस इज व्हाट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ चैनल और डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स, हम लोगों का क्या है फ्रीक्वेंसी बैंड्स नंबर और हम लोगों का एलोकेशन क्वांटिटी कैन बी चेंज्ड फॉर दैट, फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके, clear? The first type of the frequency band, frequency division multiple access. It is clear to everyone? Yes, sir. Okay. So this is the first type of the frequency division multiple access. Then next time is the time division multiple access. Next type is the time division multiple access, or we say as the TDMA. Now, in this method, the station share the bandwidth of the channel in time, and each station is allocated a time slot during which it can send data. तो इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में देखें कि हम लोगों का जो अवेलेबल बैंडविड्थ था, उस अवेलेबल बैंडविड्थ को क्या है हम लोग फ्रीक्वेंसी बैंड्स में डिवाइड कर दिए थे। तो इसमें क्या हो कि हम लोग का जो टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ था उसका फ्रीक्वेंसी बैंड में डिवाइड हो गया, और ईच स्टेशन क्या है उस फ्रीक्वेंसी बैंड को क्या है, एक एक फ्रीक्वेंसी बैंड को, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को क्या है पूरा टाइम स्लॉट में वो यूज करेगा उस फ्रीक्वेंसी बैंड को डेटा सेंड करने के लिए। बट टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या है, हम लोग अगर इसका डायग्राम देखें तो देखो इसमें क्या है कि हम लोगों का अवेलेबल बैंडविड्थ जो है हम लोगों का जो अवेलेबल बैंडविड्थ है, देखो ये जो हम लोग का टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ है, ये तो हम लोग का टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ है। इसमें क्या है कि हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी बैंड में डिवाइड नहीं करते हैं। अब स्टेशन 1 को क्या है, स्टेशन 1 को हम लोग का एक टाइम स्लॉट दिया गया, उस टाइम स्लॉट में क्या है वो टोटल
जो मेरा अवेलेबल बैंडविड्थ है उस अवेलेबल बैंडविड्थ को टोटल ये यूज करेगा एक टाइम स्लॉट के लिए। अब वो टाइम स्लॉट जब खत्म हो जाएगा, स्टेशन 2 क्या करेगा, स्टेशन 2 भी उस टाइम स्लॉट खत्म हो जाने के बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेशन 2 क्या करेगा, वो जो अवेलेबल बैंडविड्थ है, जो हम लोगों का लिंक का अवेलेबल बैंडविड्थ है, वो यूज करेगा डेटा को सेंड करने के लिए। जब स्टेशन 2 का भी टाइम स्लॉट खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टेशन 3 आएगा। और स्टेशन 3 क्या है, स्टेशन 3 और टोटल जो हम लोगों का अवेलेबल बैंडविड्थ है, टोटल जो अवेलेबल बैंडविड्थ है वो हम लोगों का लिंक का वो यूज करेगा। सेम एज दैट स्टेशन 3 का टाइम स्लॉट जब खत्म हो जाएगा, देन स्टेशन 4 विल कम एंड स्टेशन 4 विल यूज द टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ। सो स्टेशन 4 विल व्हाट, स्टेशन 4 विल यूज द टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ। तो इसमें क्या है, उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी बैंड में डिवाइड कर दिए थे, बट इधर क्या है कि हम लोग का जो स्टेशन है, वो स्टेशन क्या है, स्टेशन के पास यूज है कि वो टोटल जो बैंडविड्थ है हम लोग का लिंक का, जो हम लोग का डेटा लिंक जो है जिससे हम लोग डेटा ट्रांसफर करेंगे या चैनल जो है, उसको क्या है, उसका अवेलेबल बैंडविड्थ पूरा यूज कर पाएंगे। इसमें क्या है, अवेलेबल बैंडविड्थ को हम डिवाइड नहीं करते हैं, तो मतलब जो टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ है एक टाइम स्लॉट के लिए क्या है, स्टेशन यूज करेगा, फर्स्ट स्टेशन यूज करेगा। उस टाइम स्लॉट खत्म हो जाने के बाद सेकंड स्टेशन क्या है, टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ को यूज कर सकते हैं डेटा ट्रांसमिशंस के लिए। तो इसमें क्या है कि ऐसे चलता रहेगा। तो यही क्या है हम लोगों का टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और इसमें क्या है कि टीडीए में द बैंडविड्थ इज जस्ट वन चैनल। तो इसमें क्या है, देखो हम लोग फ्रीक्वेंसी बैंड में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो मतलब क्या है कि एक ही चैनल है मेरा, और उस चैनल का जो टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ है, उस चैनल का टोटल जो हम लोग का अवेलेबल बैंडविड्थ है, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग टोटल यूज कर पाएंगे, टोटल यूज करेंगे। एंड दिस वन चैनल इज टाइम शेयर बिटवीन डिफरेंट स्टेशन। तो इसमें क्या है कि टोटल जो अवेलेबल बैंडविड्थ है उसको हम लोग एक टाइम स्लॉट में यूज कर सकते हैं। तो यही ऐसे हम लोग का टीडीए में जो है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस काम करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकेंड टाइप दैट इज टीडीए में। इसके बाद हम लोग का जो थर्ड टाइप होता है, जो हम लोग कल डिस्कशन स्टार्ट किए थे, वो है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब ये जो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, ये जो है इसमें इन दिस मेथड वन चैनल कैरीज ऑल ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली। इसमें ना ही तो हम लोग फ्रीक्वेंसी बैंड में डिवाइड करते हैं, ना ही तो क्या है कि टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ को हम लोग टाइम स्लॉट दे देते हैं कि इस टाइम स्लॉट में क्या है, स्टेशन वर्ल्ड पूरा चैनल का बैंडविड्थ को यूज करे, द नेक्स्ट स्टेशन टू टोटल बैंडविड्थ ऑफ द चैनल कैन बी यूज्ड। हम लोग ऐसे कोई कांस्टेंट्स नहीं दे देते हैं। इसमें क्या है कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इन दिस मेथड वन चैनल कैरीज ऑल ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली, कि जितना मेरा ट्रांसमिशंस है, सब ट्रांसमिशंस क्या है, हम लोग साइमल्टेनियसली क्या होगा, ये चैनल कैरी करेगा, कि वन चैनल कैरीज ऑल ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली। एंड सीडीएमए मींस कम्युनिकेशन विद डिफरेंट कोड्स। नाउ इसमें क्या है कि कम्युनिकेशंस जो ऑकर करते हैं, इसको हम लोग क्या है डिफरेंट कोड्स की यूज से कम्युनिकेशंस को सीडीएमए में करते हैं, कि मींस कम्युनिकेशन विद डिफरेंट कोड्स। अब ये जो है इसमें कम्युनिकेशन विद कोड टेक्स प्लेस, हम लोग को दो चीज माइंड में रखना होगा। कम्युनिकेशन विद द कोड्स टेक प्लेस, दैट इज if the codes are multiplied with each other, then the answer is 0. And if the codes are multiplied by itself, then we get the number of stations present in the what, present for the communication. तो अगर हम एग्जांपल देखें, मानो कि there is 4 stations, station 1, then station 2, this is station 2, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या है कि दो स्टेशंस जो है, दो स्टेशंस प्रेजेंट है। अब ये स्टेशन क्या है, स्टेशन 1 हम लोग का क्या किए, कोड 1 जो है, कोड 1 को जेनरेट किए। सेम एज दैट स्टेशन 2 जो है, स्टेशन 3 और एक कोड को जेनरेट किए, जो है कोड 2। तो ये क्या है, स्टेशन 1 कोड 1 को जेनरेट किए, स्टेशन 2 क्या है, स्टेशन 2 और एक कोड जो है
कोड 2 को जनरेट किए। अब इसमें क्या है कि हम लोग को दो चीज याद रखना है कि इफ कोड्स आर मल्टीप्लाई विथ ईच अदर देन द आंसर इज 0। कि हम लोग अगर सेम कोड को मल्टीप्लाई करें दैट मीन्स C2 इंटू C2, अगर हम लोग को दोनों क्या है, दोनों ऐसे कोड को मल्टीप्लाई करें C2 इंटू C2, दैट मीन्स आवर आंसर विल बी व्हाट, आवर आंसर विल बी 0। ये बोल दिया गया कि इफ कोड्स आर मल्टीप्लाई विथ ईच अदर देन द आंसर इज व्हाट, देन द आंसर इज 0। एंड इफ द कोड्स आर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, कि अगर जो है दोनों डिफरेंट स्टेशंस का कोड जो है वो आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई टू स्टेशंस कोड, दैट इज स्टेशन 1 कोड, इट इज C1 एंड स्टेशन 2 कोड, दिस इज C2। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, एज पर आवर फॉर्मूला द आंसर विल बी 2। क्यों 2 आएगा, क्योंकि इफ द कोड्स आर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ then we get the number of station present in this. So here we have two station present, station 1 and station 2, so it will be, the value will be what, the value will be 2। तो आपस में अगर कोड को हम लोग मल्टीप्लाई करें सेम कोड को, तो उसमें क्या है कि हम लोग का जो सेम कोड जो है, सेम कोड को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो उसमें हम लोग का, oh no sorry, I have mistake it, 1 minute, there is station 1 and there is station 2, okay, so station 1 generate a code 1 and station 2 is what, station 2 generate code 2। so if the codes are multiplied with each other then the answer is 0, that means two different codes, if we multiply two different codes, that is C1 into C2, these two different codes, then the value will be 0। if the two different codes we have multiplied, then it will be 0। and if we multiply the same code, then if we multiply the same code, then what will be the value, the value will be the number of station present, the value will be what, the number of station present। so here what is our value number, what is the number of station present here, it is 2, that means the two stations present, so the value will be 2। so if codes are multiplied with each other, that means two different codes are multiplied, then the value will be what, then the value will be 0। and if the codes are multiplied by itself, means same code is multiplied, then we get the number of station present here। so here in our example the number of station is 2, so the value is shown as 2। तो ये हम लोग का कोड डिविजन जो मल्टीप्लेक्सेस है, हम लोग क्या है कि ऑल द ट्रांसमिशन जो है इसमें कोई हम लोग फ्रीक्वेंसी बैंड या टाइम स्लॉट में डिवाइड नहीं करते हैं, सब जो चैनल है कैरीज थ्रू ऑल ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली, सब हम लोग का ट्रांसमिशन जो है उसको साइमल्टेनियसली क्या है कैरी करते हैं। और इसमें क्या है हम लोग दो रूल्स फॉलो करना होता है कि इसमें क्या है कि हर स्टेशन जो है, हर स्टेशन का एक डेटा होता है और वो डेटा क्या है कोड जनरेट करते हैं। अब हर स्टेशन का क्या है अलग अलग कोड रहेगा। अब इस कोड में क्या है कि अगर हम लोग डिफरेंट कोड्स को मल्टीप्लाई किए तो आंसर मेरा 0 आएगा, बट सेम कोड को अगर मल्टीप्लाई हम किए तो हम लोगों का क्या है कि हम लोग का इसमें जितना नंबर ऑफ स्टेशंस प्रेजेंट है उसका वैल्यू आ जाएगा। सो हियर वी हैव टू स्टेशंस इन आई एग्जांपल व्हिच आई हैव शोन, दैट्स व्हाई द वैल्यू विल बी 2। तो अब इसमें देखते हैं कि कैसे कम्युनिकेशंस हम लोगों का होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यूज करके। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यूज करके देखो हम लोग मानते हैं कि टोटल हम लोग के पास चारों स्टेशंस प्रेजेंट है, स्टेशन 1, station 2, station 3 and station 4। so that means we have 4 stations present and each station generated data 1, data 2, data 3 and data 4।
So station 1 generate data 1, station 2 generate data 2, station 3 generated data 3, and station 4 generated data 4. Now this data, what this data will do, data 1 will what? Data 1 will generate code 1, data 2 will generate code 2, and data 3 will be generated code 3, and data 4 generated code 4. So now what will be the information available? The informations available will be C1 into D1. That means multiplication of these two. This is the total information of the station 1. Same as that for station 2, the total information will be data into code. That means C2 into D2. This is the information available for the station 2. Same as that for station 3, D3 into C3 means C3 into D3. You can say it is the total information of the station 3. And same as that for station 4, the total information will be C4 into D4 means code into what? Code into the data. So that means what? Station 1 has the information C1 into D1. Station 2 has the information C2 into D2. Station 3 has the information C3 into D3. And station 4 has the information C4 into D4. So this is what all the stations information. Now what we have to do, we have to send it through a single channel. This total information should be transmitted through a what? This total information should be transmitted through a channel. So you can see this total information is transmitted through a single channel, that is C1 into D1 plus C2 into D2 plus C3 into D3 plus C4 into D4. That means what? This total information, with adding this total informations, we are passing it to a single channel. तो अब हम लोग का कैसे स्टेशंस के बीच में कम्युनिकेशंस होता है? देखो, स्टेशंस के बीच में मानो कि हम लोग के पास जो ये चारों स्टेशंस प्रेजेंट है, हम लोग के पास ये चारों स्टेशंस जो प्रेजेंट है, हम लोग के पास स्टेशन 1 है, स्टेशन 2 है, स्टेशन 3 है और स्टेशन 4 है. तो हम लोग के पास क्या है? ये टोटल हम लोग का चारों स्टेशंस प्रेजेंट है. नाउ वी एज्यूम that all the stations are communicating between them. कि हम लोग assume कर रहे कि ये जो हर stations है, ये हर stations क्या है कि आपस में communication कर रहा है. But say कि station 1 हम लोग चाह रहे हैं कि communications दिखाने कि station 1 अभी क्या है, in this meantime station 1 and station 2 ये दोनों communicate कर रहा है. ठीक है, अभी meantime ये दोनों communicate कर रहा है. और station 2 जो है, Station 2 wants to listen what Station 1 says. कि Station 2 जो है वो अभी क्या है, सुनना चाह रहे हैं कि Station 1 उसमें क्या हो रहा है, Station 1 में क्या डेटा है वो जानना चाह रहा है. कि इसीलिए क्या है कि Station 2 wants to hear what Station 1 says. तो हम लोग कैसे जानेंगे कि क्या है? तो सिंपल एज दैट कि हम लोग क्या करेंगे, टोटल इंफॉर्मेशन जो है हम लोग चैनल में पास किए थे, उस टोटल इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या है, हम लोग लेंगे और उसके साथ क्या है कि हम लोग का स्टेशन 1 का जो कोड है, स्टेशन 1 का क्या कोड था, स्टेशन 1 का कोड था C1. तो देखो इंटू C1, तो मीन्स ये टोटल इंफॉर्मेशन जो होगा, टोटल इंफॉर्मेशन इंटू मेरा स्टेशन 1 का कोड, इंटू मेरा स्टेशन 1 का कोड, इसको हम लोग क्या है कि मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसको मल्टीप्लाई करने से देखो क्या हुआ, मेरा टर्म्स ये हुआ कि C1 इंटू D1, देन प्लस ये जो C1 था C1 इंटू C2 इंटू D2, ये टर्म्स हुआ. देन C1 इंटू C3 इंटू D3, ये टर्म्स हुआ. प्लस C1 इंटू C4 इंटू D4, ये और एक टर्म्स हुआ. तो टोटल ये टोटल हम लोगों का क्या हुआ, 4 टर्म्स तैयार हुआ. अब इसमें देखो हम जब बोले थे कि कम्युनिकेशन टाइम के हम लोगों का क्या है, 2 रूल्स हम लोग बोले थे कि हाउ कम्युनिकेशन विद कोड टेक प्लेस. वी हैव टू नो द 2, that is if codes are multiplied with each other, if the codes means different codes are multiplied with each other, then answer will be 0.
and if the same codes are multiplied, then the number of station present, we will get that. तो इसमें क्या है देखो, C1 into C2, that means what? Different codes, multiplication of different codes. So this term will be what? This term will know that is 0. 0 into D2 means what? The value will be 0. Same as that C1 into C3. ये भी क्या है कि हम लोग का different multiplication of different codes. तो multiplication of different codes means हम लोग का क्या होगा? Value will be what? The value will be 0. So 0 into D3, that means 0 into D3 means हम लोग का value क्या है? 0 है. Same as that C1 into C4. It is also the multiplication of different codes. It is also the multiplication of different codes. So that means it will, the value will be 0. So 0 into D4, the total term will be 0. But what the value of this? What will be the value of this? If both codes are same and we multiply them, we know that it will return what? It will return the number of station present. So C1 into C1, what will be the value? इधर हम लोग का कितना टोटल स्टेशन है? चारों स्टेशन है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा मेरा 4 into D1. 4 into D1. So if the same codes, then the number of station we get, so here it is 4. So that means what? The value will be what? The value will be what? The value will be 4 into D1. So that means what? 4 into D1, हम लोग का जो number of stations है, तो उसको क्या है, फिर हम लोग divide कर देंगे number of stations से. तो हम लोग का कितना number of stations है? 4 into D1, और हम लोग का divided by this term. This term हम लोग का जो this term मिलेगा, इसको हम लोग क्या है? This term will be divided by the number of station. So 4 into D1 और number of stations क्या है? Number of stations 4 है. So that means what? 4 into D1 by 4, that is our value will be D1. So finally D1, the data of the station 1 will be get by the station 2. तो ऐसे ही हम लोग क्या है कि communications जो है उस टाइम हम लोग डेटा जो है, डेटा को हम लोग ऐसे निकालते हैं कि हम लोग का अभी क्या है कि हम लोग का जो वैल्यू D1 मिला है, तो ये D1 क्या है? स्टेशन 2 को पास स्टेशन 2 जानेगा कि ये D1 जो है ये डेटा स्टेशन 1 का है. तो यही वो जानने के लिए क्या था, ये सब किए. तो ऐसे हम लोग का क्या है, CDMA जो है, CDMA का कम्युनिकेशन हम लोग CDMA में करते हैं. ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So anyone has any question? So this is all about our CDMA. तो CDMA क्या है कि अब हम लोग सेम एज दैट अगर देखें कि स्टेशन 2 और स्टेशन 4 के बीच में अगर ऐसा कम्युनिकेशन मुझे करना होगा, स्टेशन 2 और स्टेशन 4 के बीच में, तो भी हम लोग क्या है कि टोटल इंफॉर्मेशन जो है, टोटल इंफॉर्मेशन को ऐसे लेंगे और स्टेशन 1 का कोड जो है उससे हम लोग क्या है उसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या है ऐसे स्टेशन 4 का भी हम लोग क्या है उसका भी अगर मानो ये तो स्टेशन 1 के लिए हम बोले थे, अगर जो हम जानते हैं कि स्टेशन 4 और स्टेशन 3 ये दोनों का बीच में करते हैं, तो हम लोग जानने चाह रहे हैं कि स्टेशन 4 क्या सेंड करना चाह रहे हैं. स्टेशन 4 स्टेशन 3 जो है, स्टेशन 3 वांट्स टू हियर व्हाट स्टेशन 4 सेज. ये अगर होता कि स्टेशन 4 के लिए, तब हम लोग क्या है इसको 4 से मल्टीप्लाई करते. अगर स्टेशन 4 के साथ क्या है कि स्टेशन 3 वांट्स टू हियर इफ व्हाट स्टेशन 4 सेज, तो इसके क्या होगा, स्टेशन 4 का कोड से हम लोग मल्टीप्लाई करते, तब क्या होता, तब हम लोग का ये वाला जो टर्म था, ये वाला टर्म में 4 into D4 हम लोग का क्या होता, 4 into D4 and our value will become then what, 4 into D4. Okay, 4 into D4. So that means it will be divided by the number of station present. So station 3
what station 3 hears that station 4 has finally what the station 4 has D4 code. तो ऐसे ही क्या है हम लोग अगर इसमें कम्युनिकेशन जब होगा तो इसमें क्या है कि हम लोग का टोटल जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को क्या है कि जिसका हम लोग क्या है कोई कोड उसके कोड से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे इसमें क्या है कि हम इसमें एग्जांपल दिए कि स्टेशन 4 जो है स्टेशन 4 wants to hear what station station 3 wants to hear what station 4 says. So for that reason for station 4 says तो इसमें क्या होगा स्टेशन 4 का हम लोग कोड से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ऑपोजिट केस होता कि स्टेशन 3 wants to hear station 4 wants to hear what station 3 says. So that means स्टेशन 3 का कोड से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते तब क्या होता स्टेशन 3 का कोड से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते तो सेम कोड का हम लोग जानते हैं कि अगर सेम कोड होता तो हम लोग का 4 इंटू क्या होता तब 4 इंटू D3 और हम लोग का स्टेशन 4 इंटू D3 और उसको हम लोग डिवाइड करते कितना नंबर ऑफ स्टेशन से तो हम लोग का ये होता तब 4 इंटू व्हाट 4 इंटू D3 divided by 4 into D3 divided by number of station. Number of station is 4. So the value will be D3. That means D3 the data station 4 will get by station of the station 3 and it will be get by station 4. अगर स्टेशन 3 और स्टेशन 4 के बीच में कम्युनिकेशन हुआ और स्टेशन 4 अगर जानने लिसन हियर करने चाहते हैं कि उसमें क्या डेटा स्टेशन 3 में क्या डेटा प्रेजेंट है तब हम लोग क्या है ये रूल्स एप्लीकेबल करते और इसमें क्या है हम लोग तब मल्टीप्लिकेशन करते कोड 3 से। क्लियर? So that means what we have to multiply with the code that whichever station says we have to multiply it with that code. इधर स्टेशन 1 था इधर अगर स्टेशन 3 होता तो हम लोग क्या है हम लोग कोड 3 से मल्टीप्लाई करते इधर अगर स्टेशन 4 होता तो हम लोग क्या है कोड 4 से मल्टीप्लाई करते तो जो स्टेशन सेज उस स्टेशन का कोड से हम लोग क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे। ओके एंड देन आफ्टर दैट हम लोग क्या है इसमें टोटल हम लोग ऐसे जो रूल्स है इस सेम कोड में क्या होगा नंबर ऑफ स्टेशंस का वैल्यू प्रेजेंट होगा बट डिफरेंट कोड्स जो होगा उसके लिए हम लोग का वैल्यू 0 होगा। तो ऐसे हम लोग क्या है कि टोटल जो है हम लोग वैल्यू निकालते और हम लोग का टोटल टर्म एक टर्म मिलता उस टर्म को क्या है नंबर ऑफ स्टेशन से हम लोग डिवाइड कर देते तो हम लोग का क्या है कि पर्टिकुलर डेटा जो हम लोग लिसन करने चाहते हैं उस डेटा मिल जाते। ओके तो यही हम लोग का सीडीए में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। ओके सो एवरीवन प्लीज गिव योर attendance and if anyone has any question till now then you can say from this if you have any question। और एक चीज याद रखना ये थोड़ा मतलब तुम लोगों का कंफ्यूजन लग सकते हैं जो हम प्रीवियस क्लास में दिखाए थे एफडीएम टीडीएम डब्ल्यूडीएम उससे क्या है मैच कर मत देना एफडीएम और एफडीएमए दोनों सेम नहीं है सेम एज दैट टीडीएम जो कल देखे थे टीडीएम और टीडीएमए वो सेम नहीं है एफडीएमए था फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और ये क्या है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और इसका सबसे बेसिक डिफरेंस जो है एफडीएम जो है वो क्या है हम लोग फिजिकल लेयर में काम करते हैं उसको लेके बट एफडीएमए जो है ये डेटा लिंक लेयर का काम है। ठीक है तो इसको क्या है हम कल जो पढ़ाए थे उससे मैच मत कर देना एफडीएमए एंड एफडीएमए आर नॉट सेम एफडीएमए एंड एफडीएमए आर नॉट सेम एज दैट टीडीएम एंड टीडीएमए आर नॉट सेम। So session is not currently available दिखा रहा है। सेशन Yes, sir. Session is not available for self attendance.
अच्छा अच्छा देखो अभी अभी हो रहा है तो यस सर, हो गया। यस सर, हो रहा। ठीक है okay so thank you everyone the time will be ended now in so I will continue it in the next class. Okay, sir.